Good morning, everyone. I hope you all are fine there at your homes and with your families. You enjoyed this summer break. So, this is your first English session after the summer break, and I hope you all are watching me. And you should watch better now because we have called for your notebooks and books. तो अब सबको है कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लें, है ना? You have to complete all the notebooks and books. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद they have missed so many sessions and they are now asking for help. So that's okay. You can have help. You can have assistance from some of your classmates, your teachers, or your parents. But from today, please be very, very proactive about this because things are not going to change very, very soon. जल्दी नहीं बदलने वाला है because summer break से पहले हमें लग रहा था everybody was having a mindset कि जल्दी से स्कूल खुल जाएंगे और हम स्कूल जाके पढ़ेंगे. But now things are the same after the summer break also. So you have to be very, very proactive. You have to see, you have to watch all the videos. You have to maintain a notebook properly with all your classwork. I mean to say that session work and your homework also. So please be attentive now. This is the high time you should be stop thinking like this. कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं ऐसा ही चलेगा because your life बेसिकली जो आप बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, हमारे लिए भी. सो आपकी लाइफ रिस्क पे रखना सबसे लास्ट ऑप्शन और दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन इवन. ओके, सो नाउ talking about your holidays homework, it was great to see it, and those who have not submitted, you must know that this has a weightage. कुछ मार्क्स होते हैं इस चीज़ के. सो प्लीज़ बी ऑन टाइम. आप अब कहेंगे कि मैम कल भेज दें, मैम आज भेज दें. प्लीज़, इफ़ द समर हॉलीडेज होमवर्क was supposed to be submitted, so it should be submitted on time. Now talking about the next thing about your notebooks and books that we have called for. आपकी नोटबुक्स और बुक्स स्कूल में आ चुकी हैं, कुछ बच्चों की, सब ने नहीं भेजी हैं. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि अब से आपको प्रोएक्टिव यानी कि पहले से ही तैयार रहना है. कैसे तैयार रहेंगे? यू विल गेट अ टाइम टेबल. आपको मिल गया है टाइम टेबल. नाउ योर क्लासेस विल स्टार्ट एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग. तो आपको ऐसे नहीं कि बेड से उठे और बेड में ही मम्मा ने फ़ोन दे दिया और आप देखने लग गए. नो, यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर ऑनलाइन सेशंस. तो आप क्या करने वाले हैं? जैसे स्कूल के लिए हम जल्दी उठते थे, इतना जल्दी नहीं उठना है. 7-7:30 जितना आपको टाइम चाहिए. देन फ्रेशन अप, फ्रेश हो जाइए, टेक अ शावर बिकॉज इट्स टू हॉट. ऐसे you should be fresh to learn something new. So freshen up and wear beautiful clothes which make you feel good. ऐसे कपड़े पहने जो आपको अच्छा फील करवाते हैं. एंड देन हैव यू मस्ट बी हैविंग अ टेबल एंड चेयर. स्टडी टेबल अगर नहीं है प्रॉपर कोई, सो मस्ट बी एक टेबल और चेयर तो घर में होगा. उस टेबल चेयर पे अपनी नोटबुक्स और बुक्स, अपनी स्टेशनरी, whatever device you are having, phone, laptop, iPad, whatever it is there जिस पे आप वीडियोस देखेंगे वो और आप सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए. एंड शार्प एट 9 there is a 10-minute break after each video, so you can go and relax, have something to munch and have some water because you have to stay hydrated. It's too hot, I am telling you again. बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखें, पानी पीजिए. बीच बीच में जब आपको ब्रेक मिले, हैव समथिंग टू मंच ऑन. कुछ कुछ खाते रहिए, फ्रूट्स और समथिंग लाइक दैट, और अपनी जगह पर वापस आ जाए. फ्रॉम दिस रूटीन शुड बी फॉलोड फ्रॉम मंडे, like from 6th of July. Now coming back to what is supposed to be done with, like you don't have notebooks and books. So don't be worried about it. We teachers are avoiding much of the writing work. हम ज़्यादा writing work avoid करेंगे. And if something is there to write on, please note it down in your rough notebooks. एक ही notebook पे सब एक ही हफ्ते की बात है. We'll be giving your notebooks and books soon. So don't be impatient. मतलब patience रखिए, मिल जाएंगी आपको, ठीक है. एंड पेरेंट्स डोंट बी सो लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कीजिए बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड विल बी रिटर्निंग इट सून. Okay, so now coming to this session, it is a recap session as you can see here on the board. What we were left when the summer break started, we were doing nouns, singular and plurals. So coming up with this topic again, मैं उसको फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ because हम एक बार फिर से फ्रेश हो जाएं उस टॉपिक के साथ. You should be well drilled up with that topic so that we can follow up with the exercises. Now talking about nouns, सबसे पहले
इट इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल। किसी भी चीज़ का नाम, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हम देखते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं, सबका एक पर्टिकुलर नाम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। Now talking about singulars and plural, when I am talking about one noun, that means one person, one place, one thing, one animal, that is singular. उसी से अगर हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, that is plural. So in simple words, it is one and many. सिंगुलर के लिए हम क्या कह देते हैं, इट इज वन, यानी कि एक ही नाउन की बात हो रही है, एक ही चीज़ की बात हो रही है, नाउन नेम सिंगल चीज़ के लिए, एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म। दिस इज प्लूरल फॉर्म, मेनी, ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा कितने भी हो उसके लिए एक अलग वर्ड है, बट एक्सेप्शन केसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, देयर आर सम एक्सेप्शन केसेस, वो भी हम सीखेंगे। नाउ हमने ये पहले पढ़ लिया है, समर ब्रेक से पहले वी हैव डन इट, बट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक रिकैप, सो आप कल के लिए तैयार हो जाए, जो हम एक्सरसाइज करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज नाउ। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स। प्लूरल फॉर्म्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, बट बिफोर गोइंग टू द रूल्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये रूल्स सभी वर्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। कुछ ऐसे शरारती हैं वर्ड्स जो किसी रूल के अंडर नहीं आना चाहते, वो बैठना ही नहीं चाहते किसी रूल के साथ, वो अपने रूल्स बनाते हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर वी कॉल लाइक एक्सेप्शनल केसेस, कुछ अलग केसेस भी हैं। सो लाइक कमिंग टू द फर्स्ट रूल, दैट इज द सिंपल वन, सिंपली एडिंग एस। सबसे सिंपल फॉर्म जो हम प्लूरल फॉर्म छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, that is by adding s only. So many words are there, like board I am using here, so the plural form will be made by adding s words. This pen is there, so pens. I am a girl, so plural form would be girls. बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिंपली s लगाने से many फॉर्म बन जाती है। जब आप नर्सरी केजी में होते हो ना, प्राइमरी क्लासेस में, तो आपको यही सिखाया जाता है, वन एंड मैनी बनाने के लिए सिर्फ s लगा दीजिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन फर्दर। इस रूल के अलावा और बहुत से रूल्स हैं, सो दैट इज नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द रूल, द वर्ड्स, द नाउन्स एंडिंग विद s, z, sh, ch, x, double s. Sometimes in these cases we do not add s, we add es. बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, लाइक बस, buses, क्लास, classes, एक्स के लिए ले लेते हैं बॉक्स, boxes, ch, match, matches, watch, watches, sh, bush, bushes. So these are the examples of the second rule. Now the third rule says, in some nouns it is a bit complicated. ये दो y cases वाला है, जब लास्ट लेटर y हो, but if there is a vowel before y and there is a consonant before y. अगर y से पहले vowel है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली s ऐड करना है। अगर y से पहले consonant है, आपको y को हटाना है and add IES। ये दो केसेस हैं, हमने पहले डिटेल में पढ़ा था, आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक शॉर्ट रिकैप। y है लास्ट में, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा y से पहले वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट। अगर वॉवल साउंड है, कुछ नहीं करना, उसके साथ s लगा देना है, जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा है। इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, यू हैव टू रिमूव y को हटाना पड़ेगा, यू हैव टू पुट IES। आई विल गिव वन एग्जांपल, लाइक टॉय, वॉवल साउंड है o, जस्ट पुट अ s। इफ द वर्ड इज बेबी, बेबी, b है कॉन्सोनेंट, एलिमिनेट y और BABIES, बेबीज। मंकी, ई है तो आपको सिंपली एस लगाना है। लेडी फिर से कॉन्सोनेंट है, तो y को हटाइए और IES लगाना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग ऑन फर्दर विद रूल नंबर 4, इट इज सेम लाइक y। इसमें बहुत से केस है o, अगर लास्ट लेटर o है, आई एम राइटिंग पे o है, o से पहले वॉवल साउंड है या o से पहले कॉन्सोनेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इफ इट इज अ वॉवल साउंड, जैसे कि टॉय में आप देख रहे हो, सॉरी टॉय नहीं, आई विल जस्ट टेक इट रेडियो, लास्ट लेटर तो ओ है, उससे पहले आई इज ऑल्सो वॉवल साउंड, जस्ट सिंपली ऐड एस। इफ इट इज नॉट वॉवल साउंड, इट्स अ
कॉन्सोनेंट, जैसे मैंगो G है कॉन्सोनेंट, सो यू हैव टू ऐड ES, मैंगोज। ठीक है, सिमिलर है, वोवल के लिए सिंपली S लगा है, इसमें कॉन्सोनेंट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, Y को हटाना पड़ता है, IES लगाना होता है। एंड इन दिस केस इफ O इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट साउंड इज फॉलोड बाय O, जो कि लास्ट लेटर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ ES ऐड करना है। देन देयर इज अनदर रूल दैट इज F एंड FE, क्योंकि F और FE के दोनों केसेस में हमें ये दोनों एलिमिनेट करने हैं। वी हैव टू रिमूव दिस एंड ऐड VES। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, F को हटाएंगे, वुल्फ। वाइफ, wives, knife, knives, leaf, leaves. So these are some cases. I have just pointed out 5 rules here. Simple S, ending with S, Z, double S, SH, CH, X. फिर Y rule है, then O, and then F and FE. There are some words which do not follow any rule, जो मैंने आपको बताया है, बहुत शरारती बच्चे हैं इन वर्ड्स में से, तो उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। These are irregular nouns. These are irregular nouns. Everything is available in your grammar notebook, book, and you can take help from some supporting videos. I have sent one earlier. So कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है। These are certain rules जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं while making plural forms. Irregular nouns में सबसे simple है child, like which we come across many times. Simple का मतलब कि जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। Child is not childs or child is, es कुछ नहीं लगता, it is children. So it doesn't follow any of the rule. इसमें कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये अलग सा ही बच्चा है। That means I just want to make it clear कि बहुत से ऐसे क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे किसी रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं, they have some qualities, other group of children have some other qualities. So these children they don't have like I'm not saying कि उनमें qualities नहीं है, they have extraordinary qualities because वो किसी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते, वो अपने रूल्स बनाते हैं। Like man, man, so plural is men. Similarly women, women, like this. These are irregular nouns. Now talking about some more cases, कुछ words, कुछ nouns ऐसे भी हैं, they do not change even. वो तो एज इट इज रहना चाहते हैं, वो ना इस रूल को फॉलो करेंगे ना उसको, ना ही कुछ नया चेंज नहीं होना चाहते। दे आर सो स्टबर्न, वो अपनी फॉर्म को छोड़ना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल शीप, द प्लूरल फॉर्म फॉर शीप इज ऑल्सो शीप। फिश, फिश। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स विच आर न्यूट्रल प्लूरल फॉर्म्स, जो सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। सबसे बेसिक कंफ्यूजन कहाँ होती है? इफ आई आस्क यू द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, एक आदमी, एक इंसान जो है उसको हम पर्सन बोलते हैं। अगर ज़्यादा हो गया, इट इज़ नॉट पर्सन्स और एनी अदर थिंग, इट इज़ पीपल। ओके, दिस डजंट फॉलो एनी रूल आउट ऑफ दिस, सो दिस इज ऑल्सो इर्रेगुलर नाउन। सो नाउ कमिंग टू दैट कंपाउंड नाउन्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, दीज वर लाइक, अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। Okay, so in these cases you have to put S after the relation, the noun which is there. Sister, brother, mother, father, उनके साथ आप plural form लगाएंगे, law के साथ नहीं। sisters in law, brothers in law, mothers in law. So this is about singulars and plurals. I hope these nouns, I have given a quick recap because I don't want to waste any of your time. हमने ये पहले पढ़ लिया है अच्छे से। And class 3 students, I expect more responses from your side. Now you don't have the books, do not worry about it. I'll be solving the exercises in your grammar notebook, तो आपको easy हो जाएगा. Just note it down for a while in your rough notebooks. कोई भी practice notebook घर पे होगी, उसमें copy कर लेंगे. And when you get your books back, you can note it down. So this was for the first session. I hope you enjoyed it and see you soon tomorrow. Okay.